آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ کے حوالے سے ہم جس پر بات کر رہے ہیں یہ مارچ کا مہینہ ہے اور جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 3 مارچ ہے۔ 3 مارچ کراچی کی تاریخ میں وہ دن تصور کیا جاتا ہے کہ جب ایک پروجیکٹ یعنی کہ پی ایس پی جیسا ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا۔ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی وجہ کیا تھی یا پھر اس سیاسی جماعت کے وجود کی ضرورت کیوں کر پیش آئی تھی اور پھر یہ فلاپ کی طرف کیوں گیا۔ اس پورے آج کے ٹاپک میں اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سن 2011 اور 2013 کے درمیان میں۔ دو بڑی باتیں تھیں۔ سن 2011 میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ امن کمیٹی کے نام پر بھتہ اور پھر اس کے ایم کیو ایم سے ہونے والے تصادم کی ہر جگہ پر مثال دی جا رہی تھی۔ اس ساری صورتحال میں یہ بات بار بار کہی جا رہی تھی اور اس وقت جو ڈی جی رینجرز تھے رضوان اختر صاحب، انہوں نے معروف صحافی طلعت حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے سن 2011 میں اور 2013 میں یہ بات کہی تھی کہ کراچی میں ایک بڑے گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے جو انتظامی اور سیاسی اور معاشی معاملات کو دیکھے۔ یہ ان کے اس وقت کے الفاظ تھے، اس لیے کراچی میں آپریشن کا ایک بڑا ہی سلسلہ کہا جا رہا تھا اور اس میں جو سب سے اہم کردار تھا وہ تھا ایم کیو ایم یعنی کہ الطاف حسین صاحب کا۔ اس وقت الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم میں ایک چہرہ خود بن چکا تھا، یعنی کہ بقول خالد مقبول صدیقی صاحب کے جو کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ اپنے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو الطاف حسین صاحب کا جانشین تصور کر رہے تھے، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف انہوں نے یہ بات واضح طور پر اشارہ دیا تھا۔ اس وقت ایم کیو ایم میں الطاف حسین صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بھی کافی گفتگو کی جا رہی تھی اور پھر 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ دو بڑے معاملات تھے اور تیسرا جو بڑا معاملہ تھا وہ تھا ایک نئے اور پروجیکٹ کی لانچنگ، یعنی کہ عمران خان کو پروجیکٹ کے طور پر لے کر آنا اور اس قیادت کو سنبھالنا۔ سن 2011 اکتوبر میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا اور اس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سن 2013 کے الیکشن تک ایک بڑے پریشر گروپ کے طور پر لایا جائے گا۔ کچھ لوگ خیال یہ تھا کہ ان کو شاید وزیر اعظم تک کے عہدے پر لایا جائے گا اور اس وقت کی مقتدرہ قوتیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانا چاہتی تھی۔ یہ 3 بڑی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر پروجیکٹ پی ایس پی لانچ ہوا اور کس طریقے سے لانچ ہوا اس پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پھر درخواست یہ کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ 2013 میں الیکشن ہوتے ہیں اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی، ایم کیو ایم وفاق کا حصہ نہیں بنتی ہے اور اس وقت ستمبر 2013 کے اندر کراچی میں ایک فوجی آپریشن کے آغاز کی بات ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم اس کی حمایت کرتی ہے اور ایم کیو ایم کو یہ بات ہوتی ہے کہ کسی طور پر امن کمیٹی کو کنٹرول کیا جا سکے، جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے مکمل ساتھ دینے کی بات کرتی ہے۔ یہ آپریشن امن و امان کے نام پر شروع ہوتا ہے لیکن 2014 تک اس کی حیت میں مکمل طور پر تبدیلی رونما ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں یہ تینوں عنصر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلا عنصر کراچی میں امن و امان کی صورتحال۔ اب کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بڑا معاملہ یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ڈی جی رینجرز رضوان اختر صاحب ہوتے ہیں وہ راحیل شریف صاحب کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد اب ڈی جی آئی کے عہدے کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تصور کی جاتی ہے اور کراچی میں اس ساری صورتحال میں اس ایک اہم عنصر کا ہونا بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم میں جو اختلافات موجود ہوتے ہیں اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کیونکہ خود اپنے آپ کو یا دیگر لوگ اپنے آپ کو جانشین تصور کر رہے ہوتے ہیں، الطاف حسین صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور اسی دوران پھر رابطہ کمیٹی کے ساتھ 90 میں ہونے والا واقعہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب یہاں سے دبئی روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں انیس فہیم خانی صاحب کا بھی اس وقت کردار ہوتا ہے اور انیس فہیم خانی صاحب بھی دبئی روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے جو لندن میں کچھ قیادت ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے اور یہاں پر عشرت العباد اب ایم کیو ایم کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں وفاق کے نمائندے کے طور پر اور ایم کیو ایم کے گورنر کے طور پر، لیکن ان کے اختلافات بھی شدت اختیار کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور تیسری طرف خاص طور پر شدت آئی ہوئی ہوتی ہے عمران خان کے پروجیکٹ کی طرف اور عمران خان کا دھرنا 2014 کے اندر جاری ہوتا ہے۔ ایک ایم کیو ایم کے ساتھ غلطی کہہ لیجیے یا ایم کیو ایم کا کوئی بھی معاملہ کہہ لیجیے، اس وقت ایم کیو ایم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر صورت میں عمران خان کو سپورٹ کریں، لیکن ایم کیو ایم کی لندن کی قیادت ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیتی ہے اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وہاں پر سارا مظاہرہ جاری ہوتا ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کی ایم کیو ایم بھی چلی جاتی ہے اور تمام جو سیاسی قوتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے وہ عمران خان کے خلاف اتحاد تشکیل دے دیتی ہے، جبکہ اس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے ایم کیو ایم سے کہ جناب آپ اس معاملے سے دور رہیے۔ اس کی سزا پھر بعد میں نواز شریف صاحب کو بھی ملتی ہے جسے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ آصف زرداری صاحب کو ملک چھوڑ کر جانا پڑ جاتا ہے اور یہاں پر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں تیزی آ جاتی ہے۔
अल्ताफ हुसैन साहब और उस वक्त की DGI के दरमियान एक मामला को तय करने के लिए गवर्नर सिंध किरदार अदा करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। जबकि दूसरी तरफ MQM की नाराज क़यादत लंदन के अंदर, दुबई के अंदर बाकायदा से कई मुक़तदरा क़ुव्वतों के साथ राब्ते में मौजूद होती है। अब मामला ये होता है कि अब अल्ताफ हुसैन साहब के असर को कम करने के लिए एक नई जमात को तश्कील दिया जाए जो कि MQM के ही नाराज अराकीन पर मुश्तमिल हो। उनके सामने एक लीडरशिप के तौर पर बस खासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम मौजूद था या फिर देखा जा रहा था। लेकिन महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी के नाकामी के बाद ये बात कही जा रही थी कि क्या कोई सियासी जमात इसकी जगह ले सकेगी, और जो अंदर से सियासी जमात टूटेगी उसका नतीजा सन 1990-91 में बनने वाली महाजर कौमी मूवमेंट के तौर पर सामने मौजूद था। MQM से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े नाम ये मशवरा देते हैं मुक़तदरा क़ुव्वतों को कि जनाब इनकी जगह पर एक प्रेशर ग्रुप तश्कील दिया जाए, और वो प्रेशर ग्रुप MQM के लोगों पर ही मुश्तमिल हो जो बाद में अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत भी नासाज है, अल्ताफ हुसैन साहब को हटाकर वो प्रेशर ग्रुप MQM को पर अपना कंट्रोल हासिल कर ले। ये इब्तदाई मंसूबा होता है, और इस मंसूबे में कई लोग अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं कि चाहे जिसमें इशरत अल-इबाद की दुबई के अंदर होने वाली मुस्तफ़ा कमाल वगैरह से मुलाकात और उसके बाद की रवानगी, और फिर वो दिन आता है कि जब सितंबर 2015 में अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाती है कि अल्ताफ हुसैन साहब का राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए, और उसी रात को कराची और हैदराबाद की सड़कों से अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर को हटा दिया जाता है। अब ये पूरे 10 साल हो चुके हैं कि जब अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर कराची की सड़कों पर अवेज़म नहीं की जाती और उनकी तकारीर पर पाबंदी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी MQM में वो मसला नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ MQM के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही होती है, और MQM लंदन की फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पर जो MQM के खिलाफ जो क़यादतें होती हैं वो भी जल्द से जल्द मौका चाह रही होती है। आमतौर पर जब इस तरह का फौजी ऑपरेशन या इस तरह का मुक़तदरा क़ुव्वतों की तरफ से कोई ऑपरेशन होता है तो उस ज़माने में सियासी जमातें ज़्यादा तेज़ी के साथ अवामी मकबूलियत हासिल करती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप नवाज शरीफ साहब से लीजिए। नवाज शरीफ साहब ने जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब स्टैंड लिया तो उनकी मकबूलियत अपने उरूज पर पहुंची। इमरान खान जो कि अपनी मकबूलियत खो चुके थे, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ से उन्होंने अवामी सतह पर अपने आप को चढ़ाया। बिल्कुल इसी तरीके से MQM का मामला है, और MQM पर जब कभी भी इस तरह के ऑपरेशन हुए तो उनके वोट बैंक ज्यादा मुनज़्ज़म हुआ, और फिर इसका नतीजा आपने वाज़े तौर पर देखा कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें वसीम अख्तर साहब खुद जेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन वसीम अख्तर साहब कामयाब हो जाते हैं, और फिर बल्दियात में MQM एक बड़ी वाज़े पोजीशन लेने में कामयाब हो जाती है जिसकी तवक्को उस वक्त नहीं की जा रही होती, खासतौर पर 2013 के इलेक्शन की वजह से। लेकिन अब ये एक बड़ा मामला था। यहाँ पर अब जरूरत इस बात की थी कि अब उस प्रेशर ग्रुप को हर तौर पर लॉन्च किया जाए, और इसके लिए 3 मार्च का दिन तय होता है और मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस क़ायम ख़ानी साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं। जब वो आते हैं तो पहले समझा जाता है कि वो अकेले शायद जो प्रेशर ग्रुप है तो वो 90 जाएंगे या वो 90 के करीब जाएंगे और वहाँ से वो उसका आगाज़ करेंगे। लेकिन ये अहम मामला उसी वक्त तय नहीं हुआ, और यहीं से एक सबसे बड़ी गलती का आगाज़ हुआ। ये गए ख़याबान शहर, और वहाँ पर जो इब्तदाई 2 दिनों के अंदर जो तासुर उभर कर सामने आया वो ये आया कि जिन लोगों से राब्ते किए जा रहे थे या जिनसे बात की जा रही थी वो तमाम वो लोग थे जो कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के करीब तस्वुर किए जाते थे। अगर वहां पर यह फैसला जिस तरीके से तय हुआ था कि वो 90 जाएंगे और फिर वहीं से अगर प्रेशर ग्रुप अगर तश्कील पाता है या MQM के किसी करीबी हलकों में जाएंगे और वहां से प्रेशर ग्रुप होगा तो एक अलहदा बात है। लेकिन तेजी के साथ अराकीन असेंबली का PSP के साथ जुड़ना और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की तकरीर। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर MQM अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदगी का ऐलान करते हुए अब इस प्रेशर ग्रुप की शक्ल और हैयत को एक अलहदा तंजीमी ग्रुप के तौर पर दे दिया। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ एक खतरनाक किस्म की तकरीर की, और तकरीर करने के बाद अब ये बात वाज़े हो गई थी कि अब ये प्रेशर ग्रुप नहीं होगा। प्रेशर ग्रुप ये उस सूरत में होता कि वो वहाँ जाता, अल्ताफ हुसैन साहब की बात करता, और फिर उस प्रेशर ग्रुप के बाद वो कंट्रोल हासिल करता, और कंट्रोल हासिल करने के बाद वो फिर आगे करता। लेकिन इस प्लान में तब्दीली ने इसे एक बार फिर 1992 की कंडीशन पर पहुंचा दिया, और हुआ ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की लॉन्चिंग के साथ ही यहाँ पर जो अल्ताफ हुसैन साहब की मकबूलियत है उसमें कमी नहीं हुई, बल्कि वहां पर जो लोग गए उन्हें एक मशकूक नजरों से देखा जाने लगा। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की या इस फिलॉसफी की पहली नाकामी थी, और उसके बाद इसका नाम PSP दे दिया गया। सन 2016 से लेकर सन 2018 के इलेक्शन तक MQM को दोबारा से मिलाकर उसी फलसफे की बात जरूर कई बार कोशिश की गई कि दोबारा से मुस्तफ़ा कमाल साहब इस MQM का हिस्सा बने, और इस MQM के हिस्सा बनने के बाद वहां पर उनको कंट्रोल दिया जाए। इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, और फिर लेकिन वो फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के मामला की वजह से और बाद में कई और अहम किरदारों की वजह से वो मामला नहीं हो सका। अगर उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थोड़ा सा तहम्मुल, और जो गलती उन्होंने 3 मार्च को कर दी थी वही गलती अगर उस वक्त ना दोहराते तो शायद जिस जगह पर आज वो मौजूद है उस वक्त उस जगह पर होते, लेकिन बहरहाल ये मामला हाथ से जा चुका था। उसके बाद सन 2016 में ही अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के बाद MQM पाकिस्तान की अलहदगी हो गई, और MQM पाकिस्तान की जो अलहदगी हुई उसके बाद दोबारा ये इल्हाक की कोशिशें हुई, लेकिन फिर ये नाकामी का शिकार हुई और फिर ये मामला नहीं हो सका। उसके बाद PSP अब अलहदा रास्ते पर थी, और उसका एक ही नुक्ता था जिसका आज भी मुस्तफ़ा कमाल साहब
अगर पीएसपी के वजूद को और अपनी बात को अगर डिफेंड करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद था और वो था अल्ताफ हुसैन, यानी कि प्रोजेक्ट अल्ताफ हुसैन माइनस का ये प्रोजेक्ट था। बहरहाल अब उन्हें अपनी अलहदा से शनाख्त बनानी थी, लेकिन उनकी क्योंकि हर तकरीर का फोकस ही अल्ताफ हुसैन साहब था और उस वक्त एमक्यूएम पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी था, तो वो अवामी मकबूलियत से ज़्यादा दूर होते गए। दूसरी तरफ 2018 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वफाक की तरफ से इमरान खान का जो मनसूबा था वो ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आ रहा था। दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालिक ये तस्वुर किया जा रहा था और खुद एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग सन 2018 तक ये बात कहते रहते थे कि भाई हम तो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हैं, जिस दिन भी ऊँट इस तरफ करवट लेगा हम उस तरफ चले जाएंगे और हमारा कोई उनसे झगड़ा नहीं है। तो इसीलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अब बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब 2018 के इलेक्शन में जितनी मजबूत एमक्यूएम थी उतनी मजबूत 2022 में उस तरीके से नहीं रही। वो हमेशा से कहते हुए आए जनाब उस वक्त हमारी ज़्यादा ताकत थी। अब वो ज़्यादा ताकत थी या नहीं थी, खैर हुआ ये कि जब वो इलेक्शन हुए तो उसमें हमेशा 2016 के बाद से ये बात देखी जा रही है कि कराची का जो सीट्स हैं ये एडजस्ट की जाती है वफाक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पर वो सियासी ताकतें मौजूद नहीं हैं कि जो अपनी ताकत की बुनियाद पर अपने वोट को भी महफूज कर सके और अपनी सीट को भी महफूज करे, खासतौर पर अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम के जाने के बाद। अब जो यहाँ पर सियासत होती है उससे वफाक में जो नंबर्स देने हैं उस नंबर्स के मुताबिक होती है। और 2018 में इस फार्मूले को देखा गया कि जब खान साहब पंजाब ने वो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो यहाँ पर कई सीट्स ऐसी थी कि जिसमें तहरीक लब्बैक ने वाज़े तौर पर अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन वो सीट्स उनको दी गई। मुस्तफा कमाल साहब ये कहते रहे कि जनाब हमसे ये सीट छीनी गई, लेकिन रजा हारून साहब का ये बयान पिछले दिनों वाज़ेह करता है कि जनाब उन्हें यहाँ पर सीट्स नहीं मिली थी। और वाकई में ये बात दुरुस्त है कि बड़ी ताकत के बावजूद भी, बड़ी सरमाकारी के बावजूद भी और बड़े कारकुनान की तादाद के बावजूद भी मुस्तफा कमाल साहब 2018 में उस तरीके से खुश नहीं कर सके थे ताकतों को कि जिस तरीके से उनसे तवक्कुआत की जा रही थी। ये एक नाकामी की एक बड़ी वजह थी। खैर 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद हुआ ये कि एमक्यूएम से जो लोग, जिन बड़े नामों को शामिल किया गया था पीएसपी में, वो एक एक कर अलहदा होना शुरू हो चुके। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये कहते रहे कि भाई मुस्तफा कमाल साहब एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर तो हो सकते हैं लेकिन एक सियासी लीडर नहीं हो सकते। जबकि मुस्तफा कमाल साहब का ये कहना था कि जनाब ये लोग अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर गए हैं और इसकी वजह मेरी वजह नहीं है बल्कि इनके अपने अपने मफादात और अपने अपने मामलात थे। फिर दोबारा से मुस्तफा कमाल साहब को इस बारे में चांस मिलता है और ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। एक बार फिर मुस्तफा कमाल साहब लांडी जैसे इलाके के अंदर और बल्दिया टाउन जैसे इलाके के अंदर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। बल्दिया लांडी के अंदर उनके पास एक वाज़े मौक़िफ़ मौजूद होता है, महाजिर अक्सरियती इलाका मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान 10,000 के वोट लेकर सिर्फ कामयाब करार पाती है। और उनके मद्दे मुकाबिल सेकंड नंबर पर टीएलपी आती है जो सिर्फ चंद वोटों से पीछे होती है। तीसरे नंबर पर महाजिर कौमी मूवमेंट यानी आफाक मसाब आते हैं और फिर उसके चौथे पांचवें नंबर पर जाकर आती है पीएसपी। इसी तरीके की सूरत हाल उनको दरपेश आती है बल्दिया टाउन के इलेक्शन में भी। वहां पर भी वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक मुहिम का आगाज होता है और उनकी जगह पर मुस्तफा कमाल साहब एक बड़ी आवाज बनने की बजाय उनकी जगह पर हाफिज नईमुर रहमान साहब जगह लेना शुरू कर देते हैं। सो गुंजाइश वहां पर सियासी गुंजाइश, अवामी गुंजाइश उनके लिए कम होना शुरू हो जाती है। अब इलेक्शन आ रहा होता है 2023 का जो 2024 तक शिफ्ट होता है और 2023 के एक साल पहले तक ये बात वाज़ेह तौर पर हो चुकी, 2023 में बात वाज़ेह तौर पर हो चुकी होती है कि प्रोजेक्ट पीएसपी सिवाय अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस फार्मूले के अलावा अपनी अवामी मकबूलियत या अपनी अवामी सपोर्ट उस तरीके से हासिल नहीं कर सकी से उसे करना चाहिए। जबकि उसके मद्दे मुकाबिल उसी ज़माने की में बढ़ने वाले हाफिज नईमुर रहमान साहब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। जो भी इस प्रोजेक्ट के पीछे था या जो भी इस प्रोजेक्ट को या जो भी ये चाहता था, अब उनके ख्याल में वही फार्मूला जो पहले वाला फार्मूला था उसी को लागू करने की कोशिश की जाती है कि जनाब जो फार्मूला सन 2015-16 में तय हुआ था कि उस प्रेशर ग्रुप को यहाँ पर लॉन्च किया जाए और एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर उसकी गुंजाइश बनाई जाए, तो उसे दोबारा से उसी इब्तदाई शक्ल में लाने के लिए तय होता है। और फिर चंद मुलाकातों के बाद पीएसपी का प्रोजेक्ट एक बार फिर अपनी पहली इब्तदाई हालत जिसमें उसे जाना था उसमें जाकर वो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाता है। दर हकीकत यहाँ आकर ये लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीएसपी का प्रोजेक्ट क्या खत्म हो गया? नहीं, पीएसपी का जो मेन प्रोजेक्ट था या जो काम था वो तो उसी सिलसिले जारी रहा, फिर आगे चलकर वो कहानी कहाँ पर आकर होती है। अब उसके बाद ये होता है कि पीएसपी और एमक्यूएम आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये बात तस्वुर की जाती है कि अब क्या उसका नया ढांचा क्या होगा। 2 साल इस इलाक को हो चुके हैं, लेकिन इस इलाक में क्या मुकम्मल तौर पर वो जो इब्तदाई फार्मूला था उसको कंट्रोल करने की बात आ सकेगी और क्या ये प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी हासिल कर सका या नहीं कर सका, ये राय हम आपके ऊपर रखते हैं।